Hello, good evening, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports in the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023, and the news is that South Africa have won their game against Afghanistan. They'd already qualified for the semi-final, but now, well, they must be feeling very happy because they chased a total. Before we speak about that, let me bring you to the conversation four of my very, very special panelists that I have. First up, a young, dynamic, one of the best fielders that Pakistan produced. A great runner between the wickets, great player of spin bowling. Captain Pakistan, we've got Shoaib Malik. Good evening, assalamu alaikum, Shoaib. Good evening, walaikum salam. Assalamu alaikum, everyone. And one of the most dependable batsmen during his era, whenever Pakistan had a batting disorder, he'd be holding one end up. One of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history, and the only one on the panel today to choose Afghanistan as the expert winning side, Misbah. Good evening and assalamu alaikum, Misbah. Hello. Good evening. Next up, two straight thumbs, 8 crooked fingers. Well, the man of crisis, also a great runner between the wickets, also Captain Pakistan, kept the wickets for Pakistan, and we lovingly call him the Silver Fox of the Pavilion. Good evening and assalamu alaikum, Moin Khan. Good evening, walaikum salam. Assalamu alaikum, everyone. And finally, as I say, वो रैप स्टार भी हैं, वो शायर भी हैं, वो अदाकार भी हैं, एक मुकम्मल फनकार भी हैं दोस्तों। और तो और अब हम आपको क्या बताएं, बहुत से किस्से ऐसे हैं जिनका हम यहाँ जिक्र ही नहीं कर सकते। The cricket royalty himself, the Sultan of Swing, one of the finest all-rounders, the king. In fact, we've got Wasim Akram. Good evening, assalamu alaikum. Good evening, assalamu alaikum everyone, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन का। ये मेरे अल्फाज नहीं है, हाँ, ये तो वो है जो सब कुछ आप करते हैं। फिर इसके बाद आपको वो करना चाहिए। Okay. हाँ, इसके ऊपर आज तो कोरस भी हमने लाइन किया हुआ है उसका तरीके से at some point during the evening. All right, folks, let's take a look at the match summary. आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है match summary. This is how it went down. आज Afghanistan batting first. Toss जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया. Unfortunately, it wasn't what they were expecting. However, Azmat there, look at that fantastic 97. I just wish कि उनको 3 रन और मिल जाते हो अपनी सेंचुरी पूरी करते. Would have been really, really good for his confidence and for Afghanistan. But nonetheless, it was a decent effort by him, and then everybody contributing. थोड़ा सा top order आज इनका wobble किया जिसकी वजह से बड़ा total नहीं लगा सके. But 244 in 50 overs, and then you have the pick of the South African bowlers. And this man, Kwitzi, he has been really, really quick. 4 for 44 today, but we're going to talk about how he was really testing the batsmen, the Afghanistan batsmen. Maharaj really, really bowling really well, 2 for 25. In response, it was Wender Dusen that basically made sure that South Africa got across that finish line, because even though they chased it off today, at some point it looked like it was not that easy. And there, Nabi picking up 2 for 35, Rashid also 2 for 37 in 10 overs. Mujib, Mujib also picked by Misbah as the player to watch out for. Not that great a performance. South Africa won by 5 wickets, and with that, it's time to take a look at the points table. And here's the ICC Men's Cricket World Cup India 2023 points table. This is how it's looking this evening. You have the 3 qualified semi-finalists already up there. India undefeated in this World Cup. And then you have South Africa. They have now, out of their 9 games, played 1-7, lost 1, sitting at number 2. Australia at number 3. New Zealand, in all probability, goes into the 4th spot for the semi-finals. But that has to be decided. It'll be decided tomorrow when we come to the end of the day tomorrow. Pakistan sitting at number 5, Afghanistan at 6, England at 7. Afghanistan must be very, very proud of that performance because they've done really fantastic in this World Cup. It has been a special performance by them throughout this World Cup, and that's how your points table is this evening. Wasim, a great campaign comes to an end for Afghanistan. Yes, great campaign. Afghanistan should be proud of themselves as a team, as a unit, the way they performed, captain led from the front, and they've learned some positives from this World Cup. Their middle order has been very strong. Top 5 batters scored 250 or more runs in this World Cup, जो कि मेरे ख्याल में पहली दफ़ा किसी टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर ने कंसिस्टेंसी दिखाई है. They came coming to an age as batters. They realized they have the talent, there's a bit of patience, good technique. They got runs, and they उन्होंने काफ़ी बड़ी टीमों को हराया भी है और अंडर प्रेशर भी डाला है. और उनको एक और चीज़ पॉजिटिव, उनको एक ऑलराउंडर मिल गया जिसने इसमें विकेटें भी ली हैं, स्कोर भी किया है. And you know, and now
They can play either 3 spinners or 4 spinners in this World Cup के बाद. We've seen them play 3, we've seen them play 4th. आज 4 खिलाए थे. But one thing they have to work on it, they're fast bowlers, I think. अब पता लग गया इनको कि इन्होंने किस पे काम करना है. Spinners they are fine, batting middle order is really good, and Gurbaz, I think he maybe changed his game a bit. His game is okay. He's got a very good technique. He's a proper batter, but his technique is first 10 overs to go for the kill, go for the attack. But I think इसको शायद different role दिया था Jonathan Trott ने maybe. But over and all, very interesting and fun, loving cricket they played in this World Cup. So well done, Afghanistan. Yeah, well done. Azmatullah Umar Zai, जिस तरह वसीम ने कहा, has come out as a great all-rounder. बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने वो किया. आज की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने. आज ही बिल्कुल मच नीडेड भी थी, उस वक्त हमें चाहिए भी थी. यहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से एक प्रेशर था उस वक्त मैच में. जिस तरह सेंसिबल क्रिकेट खेली है, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल इनिंग. और थोड़ा सा किसी ने यहाँ पे दूसरे बैट्समैन ने साथ नहीं दिया. अदरवाइज दे वुड हैव स्कोर्ड 30-40 मोर रन्स. आइडियल आई थिंक सिचुएशन थी उनके लिए. अपने आप को स्टे किया पिच के ऊपर, देन ग्रेजुअली बिल्ड किया इनिंग. बहुत ही स्ट्रेट बैट से बहुत ही ज़बरदस्त कहना चाहिए. बड़े सेफ लाइक गैप के अंदर शॉट्स प्लेस किए. Was a wonderful inning. Very unfortunate that he missed his century and not out गए वो. But I think it was much needed at that time. Otherwise अगर उमर ज़ई भी आउट हो जाते थे यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे फिर 200 रन भी लगते इस वक्त, जो कि इजीली पे 600 हो जाते. It would have been very difficult. Yeah. Misbah, let me bring this conversation to you. आज अफगानिस्तान की टॉप ऑर्डर जो है उधर फेलियर हुआ है बेसिकली. व्हाट वाज स्पेशल दैट साउथ अफ्रीका वाज डूइंग टुडे दैट अफगानिस्तान कुडंट नेगोशिएट? आई थिंक बॉडी लाइन जब शॉर्ट बॉलिंग की है उसकी वजह से बिल्कुल ही एक टाइम पे अर्ली ऑन बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट मिला है. उसके बाद कोच जी जैसे ही आए हैं उन्होंने जब बाउंसर स्टार्ट किए हैं तो टोटली जो जितने भी बैट्समैन है वो तितर बितर हो गए. और उसके बाद कोई समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है. इवन जो ट्रिगर मूवमेंट भी सम ऑफ द बैट्समैन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द लेग एम्पायर. क्लियरली नज़र आ रहा है कि पेस जो है ये देखें वेल डायरेक्टेड बाउंसर था. थोड़ा सा बाहर वाले बाउंसरों को छोड़ रहे थे, अच्छा खेल रहे थे. लेकिन ये जो बॉडी लाइन बॉलिंग स्टार्ट हुई है तो उस पर प्रॉब्लम्स हुई हैं. और वहाँ से फिर जो विकेटें गिरी हैं दैट बेसिकली जस्ट पुल देम. ये बिल्कुल कोई आइडिया नहीं हो रहा उस पेस को. इससे पहले एक बाउंसर हुआ, फिर ये अगला बॉल ये वाला था. ये देखें ये प्रॉपर बॉलिंग जिसको आप कहते हैं कि शॉर्ट बॉलिंग, जिससे अनसेटल किया और फिर शॉटें खेली हैं. जो प्रीवियसली अफगानिस्तान लग रहा था कि इन बॉलों को हैंडल कर रहे थे, छोड़ भी रहे थे, पुल शॉटें मार रहे थे. बट आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि अर्ली ऑन एक्स्ट्रा बाउंस हल्का सा मिल रहा था पिच पे, उसको हैंडल नहीं कर पाया. ये तेज तो है नो डाउट. बिल्कुल 88-89 पे बॉल कर रहा है. His attitude reminds me of एक साउथ अफ्रीकन बॉलर होता था आंद्रे नेल. Yes. You remember? जी लेकिन उससे तेज है. हाँ उससे तेज है. वो तेज नहीं था मगर गुस्सा इससे डबल तेज था. He was angry young man with not much pace in him, but वो टीवी पे देखते थे. Maybe that's what was making him angry. But he was like really angry. Yeah, he was there. आज शोएब मलिक आपने देखा महाराज ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की. बट अगर आप कंपैरिजन करें बिटवीन द स्पिनर्स, राशिद की बात नहीं हो रही. राशिद इज अ स्पेशल टैलेंट ऑल टुगेदर. बट इफ यू टेक द रेस्ट ऑफ द स्पिनर्स ऑफ अफगानिस्तान and you look at Maharaj's spell, what was Maharaj doing differently that he was getting that kind of grip off the pitch? I think different जो है टेक्निक है टू रिलीज द बॉल. अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं नबी को निकाल के वो सारे लो ट्रैजेक्टरी वाले हैं. और लो ट्रैजेक्टरी वाले जो स्पिनर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होनी चाहिए, और वो कोशिश भी यही होती है कि वो स्टंप्स में बॉल करें. क्योंकि लो ट्रैजेक्टरी वाला जो है जब वो स्टंप से बाहर बॉल करता है तो बैटर के लिए बहुत ईजी हो जाता है. महाराज जो है ये ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं. ये डिसीव करते हैं अपनी पेस के साथ, ये पेस में खेलते हैं और उसी में बैटर को जो है वो कभी थोड़ा सा फ्रंट फुट पे लेके आएंगे, कभी बैक फुट पे लेके जाएंगे. तो ये पूरा जो है ना मिक्स कर रहे होते हैं. और सेंटनर भी सेम है. ये दोनों जो है सिमिलर हैं. सिर्फ फ़र्क इनमें इतना है कि सेंटनर के पास ज़रा हाइट है और महाराज जो है ये ज़रा उस तरह हाइट नहीं है. लेकिन इनका जो वेरिएशन है वो बहुत अच्छी है. मिसबा भाई ऑलवेज सेज कि लंबी क्रिकेट से ये चीज़ आती है. टेस्ट के बॉलर हैं और 10 ओवर जब आपने कराने हो तो फिर आपको लंबी क्रिकेट का बहुत अच्छा बॉलर होगा. इसने कंपैरिजन किया कि राशिद नहीं बाकी स्पिनर्स, बट फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ड्राई बॉल से बॉल करने में
और सेकंड डिग में फ़र्क तो पड़ता होगा स्पिनर को। बिल्कुल वो होता है वसीम भाई, लेकिन ये जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, ये इनको हर सिचुएशन में बॉलिंग करनी आती है, तो इसीलिए वो पहले असेस करते हैं। सिर्फ स्पिनर का काम ये नहीं है कि यार मैंने ना बस मेहनत की हुई है तो मैं इसको बैटर्स को यहाँ बॉल करूँगा या ये करूँगा। कंडीशंस असेस करते हैं ये। 2 सेट बैटर्स को बॉलिंग जब आप स्पिनर करने आता है उसका डिफरेंट जो है वो माइंडसेट होता है। जब नया बैटर आता है वो आप ज़्यादा लूप दे सकते हैं बॉल को, तो इस तरह की सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये देखें मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ मोइन भाई लिख भी रहे हैं साथ साथ। मैं लिख रहा हूँ भी आप लोग ये मैं पॉइंट बताऊंगा जब मैं इस पे बात करूंगा, सबने मिस किया होगा। अभी नहीं बताएं। अरे बताएं ना, क्योंकि अभी ब्रेक में जाने से पहले अच्छा ये पॉइंट ले आए आप। एक बहुत मजे की बात है, आज 6 कैच पकड़े डिकॉक ने। डिकॉक ने 6 कैच इस वर्ल्ड कप का तो 100% record है। I don't know about the other records, but that's great work behind the stumps. But what does that say about the bowling then? कि प्रॉब्लम है। आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आया उन्होंने क्यों बोला है कि 6 कैच पकड़े हैं। उन्होंने डिकॉक पिक किया था। Oh my goodness, so yes, एक मिनट ये है मेरे सामने। 40 भी किया है। 40 भी किया। मिसबाह उल हक ने किया था, मुजीब को पिक, वसीम भाई ने किया था अकरम को, मोइन खान ने किया था डिकॉक को, और शोएब मलिक ने किया था रब्बाडा को। Yeah, that's those are your नहीं तो जो जिन्होंने अफगानिस्तान चूज किया था वो उधर से गल करो थोड़ी सी। बात होगी सारी की सारी। एक चीज जरूर है, कल प्रैक्टिस पे भी जाना। कल प्रैक्टिस से भी जाना। हेलमेट बनवा लिया, देश के को वाइजर लगवा लिया। खाली हेलमेट से कुछ नहीं होगा, रजाई लेके आना। धमकियां चल रही हैं यहाँ पे। Alright, we're going to take a break there. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. South Africa won their game against Afghanistan and carry on. But आज South Africa ने chase किया. Van Dusen played a very important role there in Misbah. What was special about his innings pace? What did he do to make sure कि ये fall apart ना करे? Because challenge रहा है उनको chase करने में. जो उनका रोल है साउथ अफ्रीका की टीम में, वो वैसे भी एक एंकर का रोल है, तो आज उनको चाहिए भी यही था। जो टारगेट था वो इतना था कि वो एक तरफ से पूरे ओवर्स खेलें। और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो उस दिन हम बात कर रहे थे, स्पिनर्स को अगर आप देखें कि वो बैकफुट पे भी जब खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका जो अपर बॉडी है वो नीचे होती है, क्लोज होते हैं बहुत उसके। तो ये ख़ास चीज़ थी अफगानिस्तान के स्पिनर्स को, द वे ही बैटेड अगेंस्ट दैम, मेड श्योर कि मैं एंड तक रहूं। और रोटेशन भी की है, जहां बाउंड्री अपॉर्चुनिटी आई है अटैक भी किया है। आई थिंक ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट इनिंग थी कि बीच में अगर एक तरफ से ये खड़े ना होते तो फिर दोनों एंड एक्सपोज हो जाते स्पिनर्स पे और राशिद खान गेम में आ जाते जल्दी। आई थिंक इट वाज वेरी कंपोज्ड इनिंग और ही जस्ट मेड श्योर कि मैं एंड तक रहूं, मैच ख़त्म करके जाऊं। तो साडा भी बड़ा घर कर गया। वर्ल्ड कप में स्ट्रगल भी कर रहा था। एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहता हूँ। हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन कहीं पे भी आप चले जाएं, बेशक आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल, तो ये हमेशा एक्सेप्टेंस रहेगी ऐसी इनिंग्स की। जो आज उन्होंने 95 बॉल्स लिए, मोइन भाई सही से लिखिएगा, 76 रन उन्होंने बनाए, और उसमें एक चीज़, ये एक्सेप्टेंस जो है ये हमेशा रहेगी। जो बात करो ना, इधर क्या देख रहे हो? पहले से लिखो दोबारा लिखते अपने हाथ से फिनिश करो क्योंकि उन्होंने मैच को ख़त्म किया। इसीलिए विराट जो है उनकी एक्सेप्टेंस क्यों है, जितने भी वो रन्स बनाते हैं, क्योंकि वो मैच ख़त्म करते हैं। तो इसलिए आई गेस ये मैच ख़त्म करना इज़ द की। या वसीम, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं सब लोग और हमने भी बड़े उनकी तारीफ़ की। अगर एक सवाल किया जाए, थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को ये सवाल बुरा लगे या शायद वो ना लगे, बट अगर आप अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की लें और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की लें, तो ये कंपैरिजन, ये मुआवजा कैसा रहेगा? Look, it's not fair to compare both the sides, but yeah, if you really want me to compare, अगर मैं जो मैंने देखा है इस वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान टीम looked stronger in this World Cup. Yeah.
Yeah. मे बी हमारे लड़के फटीक थे या उससे पहले एशिया कप, फिर 2 टेस्ट मैच, फिर 3 वनडे की सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान इन hot weather and warm climate in Sri Lanka. But in this World Cup they definitely looked better than Pakistan team. ये तो जो है वो तो बताना पड़ेगा. अगर थोड़ा डेप्थ में जाना है और तो आज जाते हैं ना. Let's go into depth when we can in the Ask the Pavilion segment maybe we can talk about it because कुछ सवालात भी आए हुए हैं आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कंपैरिजन के हवाले से. तो I think we can address that. मैं तो इसी कॉन्वर्सेशन में इसको ले आया. वैंडर डूसन की हम बात कर रहे थे. वैंडर डूसन हैज बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ मोइन फॉर साउथ अफ्रीका. और जिस तरह मिसबा ने कहा उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त है. आज भी बड़ी शानदार इनिंग जो है उन्होंने खेली है. रोल जब एक दफ़ा टीम मैनेजमेंट या टीम का जो थिंक टैंक है आपको दे देता है, उसके बाद ये इंडिविजुअल के ऊपर मुकम्मल तौर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फिगर आउट कि यार ये मुझे कहा गया, मैंने ये करना है, अब मैं उसको तरतीब दूंगा, या उस पर भी मुसलसल फीडबैक आ रही होती है थिंक टैंक की, कप्तान की? देखिए एक जनरल रोल होता है, वो आप ज़रूर देते हैं जनरल रोल आप, लेकिन जब मैच की जो सिचुएशन होती है वहाँ इंडिविजुअल जो होता है उसका अपना प्लान बनता है. वो किस तरह लेके जाना है, किस तरह की सिचुएशन है, आपके अगेंस्ट बॉलिंग किस तरह की हो रही है, स्पिनर्स लगे हुए, फास्ट बॉलर्स लगे हुए, क्या फील्ड ली हुई तो आप उससे देख के अकॉर्डिंगली प्लान बनाते हैं. तो ये नहीं है, आई थिंक कि आज क्लियर सिचुएशन ऐसी थी कि विकेट इन हैंड रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आई थिंक. और वो जो पहले स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स पे, अगर हम देखें 5-6 दफ़ा स्पिनर्स पे आउट हुए, आज उन्होंने इंश्योर किया, वो खुद भी खेल रहे थे, खड़े होके लाइक स्टे कर रहे थे, सिंगल्स पे कंसंट्रेट कर रहे थे, बड़ी हिट्स पे नहीं जा रहे थे. एंड साथ साथ वो दूसरे जो 7 बैट्समैन जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हुई हैं, थोड़ी देर मिलर भी उनके साथ खेले, माकरम भी खेले, उनको भी साथ खिला रहे थे. वो इंश्योर कर रहे थे कि जो मेन बॉलर्स हैं, स्पेशली राशिद का इकॉनमी देखें आज बहुत आपने देखा कि बहुत कम रन दिए, इंश्योर करते इनको विकेट ना मिले तो वो एक जो रोल था उनका इन बिटवीन, आई थिंक दैट वाज बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोल आज उन्होंने निभाया. आई डोंट थिंक सो कि किसी ने टीम मैनेजमेंट में उन्होंने कहा था ये आपका ये रोल होगा. आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद पिक करते हो एज अ प्रोफेशनल, देन एग्जीक्यूट करते हो अपने. आई थिंक इट वाज वंडरफुल इनिंग, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इनिंग थी आज. एंड द वे फॉरवर्ड फॉर अफगानिस्तान, ਤੁਸੀਂ आपस में डिसाइड कर लो किन्ने दस रहे. मैं नहीं दस रहा हूँ, यू डिसाइड हु इज गोइंग टू आंसर द वे फॉरवर्ड फॉर अफगानिस्तान. आई थिंक अब तो काबुल ही जाना है. On a serious note, they played well. I think एक impact create किया है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त. कुछ फ्लॉज थे वो भी ओवरकम किए, लाइक के चेजिंग में अच्छे हमने 2-3 मैचेस देखे जो उन्होंने चेज किए. एंड देन अगेन जैसे वसीम मैंने मेंशन किया था, एक अच्छा ऑलराउंडर उमर ज़ई की सूरत में उनको मिला है जिसने टाइम परफॉर्म किया जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे आके. तो आई थिंक बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं. अब आगे आने वाले दिनों में लगता है कि जो बड़ी टीम है, अभी जनवरी में भी इंडिया का टूर कर रहे हैं, 3 T20 मैचेस हैं और T20 में और बेटर खेलती है ये टीम. आई थिंक इनके पास फेयर चांस है, बड़ी टीमों को बिल्कुल थ्रेट कर सकते हैं अब ये. और जिस तरह ही वर्ल्ड कप खेला, आई थिंक इट वाज अमेजिंग टू सी. पावर हिटर की नीचे ज़रूरत है, पावर हिटर की ज़रूरत है जो कैन ऐड 30-40 रन्स. देन दे नीड अ 1 fast 2 fast ball. Ideally you can bowl 85 to 90 kilometers an hour, and I'm doubt के I'm sure उनको मिल जाएंगे. And then most importantly, test playing nations have to help them to have more series against them, especially South Africa, Australia, इंग्लैंड. इंडिया के साथ सीरीज़ आ रही है उनकी, T20 की 3 आ रही है इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. बट आई थिंक टेस्ट प्लेइंग नेशन उनको पुश करेंगी तो ये और क्रिकेट ऊपर आएगी. एक चीज़ और कर सकते हैं कि बहुत सारे इनके प्लेयर्स जो हैं वो दे प्ले लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ट्राई करें कि काउंटी क्रिकेट भी खेलें, क्योंकि लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो देयर इम्प्रूवमेंट टाइम. उनके फास्ट बॉलर भी तो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं. नवीन ने कहा था वर्ल्ड कप से पहले वो 3 मैच थे खेले हैं, उन्हें की रिटायर होना है. बट ही इज जस्ट, आई थिंक ही वांट्स टू प्ले लीग. आई डोंट थिंक ही वांट्स टू प्ले ODIs anymore. Okay, they can find, but yeah, I think Noor played for some county this year, right? If I remember correctly. But yes, spinners and they're good enough to play in county cricket now, these guys. And with that, we're going to take a break in the pavilion. But when we come back, it's your favorite segment, #Ask the Pavilion. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. अपने पैगामात, अपने सवालात हमें भेजना शुरू कर दीजिए. We'll address them after this break. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airways app our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And the news is that South Africa won their game against Afghanistan. And with that, Afghanistan's campaign comes to an end. Well played, Afghanistan. And the fans of Afghanistan should be really, really proud how their team have gone about their campaign through this World Cup. Now, with me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. And it's time for your favorite segment. Hashtag Ask the Pavilion. Shoaib Malik, you have a question. Yes, I have a question. इनका नाम है Abbas Babar from Brussels. Thank you, Abbas, आपके सवाल का. Salam everyone, huge fan of this show from Brussels. Can you honestly answer, does anyone of you four actually believe that Pakistan can qualify? I believe that even if our batsmen get 400 to 450, do our bowlers even have what it takes to restrict England to 150? Question mark. भाईजान तुसी दसो मेरे ते बस दी गल नहीं एग्जैक्ट अगर हमारे पास सिनेरियो तो फिर देख लेना फिर बात वो मज़र ने कोई देखो सिनेरियो नहीं भेजा अभी रियलिस्टिकली अब्बास आप बात कर रहे हो कि 450 करना इज लिटरली काइंड ऑफ आई एम नॉट सेइंग कि इट्स इम्पॉसिबल बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आई होप के वो कर जाएं, आई होप के उनको 150 पे आउट कर लें, बट हाईली अनलाइकली. आई एम सॉरी टू बस्ट योर बबल बडी, बट हाईली अनलाइकली. आई होप आई एम रॉन्ग दो. Yeah, we would all love to see Pakistan, but we have to be realistic about how things are, and I think we need to introspect and see where we went wrong. And एक और क्वेश्चन था आपका शबी, वो 27 वाला कुछ. हाँ जी, वो अब मेरा हाल कहीं और चला गया उनका ये नाम. बड़ा इशू है. हाँ ये आ गया. नहीं गया. बहुत सारे सवाल आ गए. अच्छा जी, सौरदीप _ 1992 आपका सवाल है. Ask the Pavilion would like each member of the panel to please name one opposition player's performance against their team that left them in awe. Also, thank you to the panel and back-end team for making the World Cups memorable for the past 3 years. Well, thank you very much. Yes, the entire team has been able to do that. जो performance हम individual हम सबको पसंद आई है. जब आप for example जब आप खेल रहे थे तो आपके खिलाफ दूसरे ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस की हो जिसने मैक्सवेल ने कर दी अफगानिस्तान के खिलाफ कि आप ऑन में रह गए कि अरे यार ये क्या थी यार, you know that. So wait, do you remember the one off your head? मुझे याद है एक जो माइक हसी. Yeah, that's semi-final. It was in semi-final. The T20 World Cup, correct? Yes. 20 and over चाहिए था आखिरी 5 ओवरों में, and he just scored that. I think mine was 99, this famous test match at Hobart, where they were 125 for 4 or 5 in fact, I think probably 5 down, chasing 374, and the great Gilchrist came and he scored 150. Wow. He smashed us all over the park. You, Moin? मैं बिल्कुल वही अभी जो उसी मैंने बात की, मुझे भी गिलक्रिस्ट याद आ रहा था उसी मैच पे परफॉर्मेंस. आई थिंक वो मैच पूरा जीता हुआ मैच था हमारा, एंड ही just took it away from you. For you, Shoaib? Great inning. स्कॉट स्टाइरिस ने 100 बनाया था ऑकलैंड में. वो हमारे मतलब हाथ में मैच था और नामुमकिन था. ही प्लेड अ इनिंग्स, ही स्कोर्ड 100. और वो ऑकलैंड का ग्राउंड है ना वसीम भाई, वो कभी हाँ अजीब सा है, कोने छोटे हैं, उसने कोई कोना नहीं छड़िया जिते सानू छिक्का नहीं मारा. Styrus could be lethal on his day. All right, thank you, gentlemen. Aslam Patel _Patel 20568. आपका सवाल है. Salam to everyone. My question to all panelists. From the very first day, Gautam Gambhir and Harbhajan Singh said in their commentary box or in different places that Afghanistan and India are the only 2 dominant teams in this World Cup from Asia. Does that mean that Pakistan, Lanka and Bangladesh teams were weaker? What's your opinion? I'll leave it to you guys. अगर सिर्फ वर्ल्ड कप को सामने रखना है, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करेंगे, उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में बात I think अफगानिस्तान played better cricket than us. ये तो वो है. और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, इंडिया is the only team from the subcontinent who has been qualified for the last 4. Or yes, in my opinion, if we are just sticking with this World Cup, yes, Afghanistan have played better cricket than us. Okay, guys, so there's a question that came. I marked it again. वही वाली बात हुई है. Too many questions have come in. I've missed that question out. I forget the name of the person, but the question was very interesting. वो मैं put forward करता हूँ, Misbah, for you and Shoaib specifically. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं, जो अच्छी बाउंसी पिचेस पे खेलते हैं, वो बैट्समैन
सब कॉन्टिनेंट में आके उनको क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी बैटिंग के अंदर? व्हाट इज द एडजस्टमेंट? Before they answer on technicalities, Yeah. I suppose आपने पूछा ना कि उनको क्या प्रॉब्लम होती होगी. अब वो ये प्रॉब्लम 90s में बहुत होती थी बिकॉज बड़ा कम खेलते थे वो सब कॉन्टिनेंट में. Right. अब विद IPL एंड लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग इन इंडिया, लॉट ऑफ टीम्स ट्रैवल, रेगुलर टीम्स, अब वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है मेरे ख्याल में. बट नाउ यू कैन So एक्सप्लेन I द think टेक्निकलिटीज. that's a good point. But वो जो सवाल है वो बेसिकली है कि क्या टेक्निकली क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? So I would assume Misbah, why don't you take us through this one? देखिए, बाउंस का ऑटोमेटिकली एक फ़र्क है, थोड़ा सा पेस का फ़र्क है. दूसरे स्पिनर्स को आप ऑस्ट्रेलिया में जब खेलते हैं तो वो इतना ज़्यादा स्पिन नहीं होता, थ्रू द लाइन लगती हैं शॉटें. और यहाँ पे आके आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा की फीट मूवमेंट बेहतर होनी चाहिए, टेक्निक बेहतर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप मुश्किल में होते हैं. बैक फुट पे बहुत ज़्यादा अगर आप खेलेंगे तो वो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ पे स्कोरिंग एरियाज़ डिफरेंट होते हैं थोड़े से, जो कि मुझे इंडिया की पिचेस में इतना फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो वेन्यूज़ हैं उनकी पिचेस अच्छी हैं, उनका बाउंस भी अच्छा है. और बाहर के जितने प्लेयर हैं, अब साउथ अफ्रीकन, उन्होंने इन्जॉय किया वहाँ पे बैटिंग को, और उनके स्ट्राइक रेट्स आप देख रहे हैं किस तरह के रन्स वो कर रहे हैं. हाँ, कई जगह पे ऐसे होते हैं एशियन कंडीशंस जहाँ पे थोड़ा लो बाउंस होते हैं, शारजा है, स्किटी टाइप है, वहाँ पे जब आते हैं ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन प्लेयर, उनको इश्यू ज़रूर होता है, क्योंकि बैक फुट वाला गेंद भी कई दफ़ा आपको थोड़ा फ्रंट फुट पे मैनेज करना पड़ता है, और अगर आप पीछे जाते हैं तो लेग बिफोर के चांसेस होते हैं. तो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल स्पिन का डिफरेंस होता है, दूसरा बाउंस और स्कोरिंग एरियाज का फर्क. डिफरेंस तो वो कह रहे हैं कि है, बट वी ऑल नो, बट वो टेक्निकली क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं? क्या वो हैवी बैट इस्तेमाल करते हैं? क्या वो स्टांस अपना डीप कर लेते हैं? कोई उस तरह की कोई एडजस्टमेंट? एक चीज़ करते हैं वो लोग, जो बात भी अक्सर होती है उनसे, देखें जहाँ पे बाउंस होता है, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वहाँ पे बाउंस बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन में, तो वहाँ जब बाउंस आपने खेलना होता है तो आपको टॉल रहना पड़ता है. आपका स्टांस जो है, आप टॉल में खड़े हुए होते हो. जब वो सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे करते हैं कि वो टॉल नहीं खड़े होते, वो थोड़ा सा झुक के खड़े होते हैं. थोड़ा सा वो झुक के खड़े होते हैं, उसमें आसानी हो जाती है. जहाँ पे बाउंस कम हो तो आप मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी ज़रा नीचे हैं तो आपका बैट भी जल्दी आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, ये वो स्मॉल एडजस्टमेंट ज़रूर करते हैं. All right. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more hashtag Ask the Pavilion on the other side. Stay with us. Hello and welcome back to the Pavilion. और आप देख रहे हैं A-Sports, ARY Zap App and 10 Sports, and Shoaib Malik has a question. Shoaib? जी, पहले मिस हो गया था. राना राइट्स, थैंक यू दोबारा आपका सवाल भेजने का. द क्वेश्चन इज, जी सब सही है मेरा ख्याल है. इज देयर अ चांस फॉर एन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इन 2027? क्या नाम बताया था इनका? राना राइट्स. राना राइट्स, क्या हालचाल है आपके? ठीक ठाक है. सानू अगले घंटे का नहीं पता की होना है. क्रिकेट जैसे पाकिस्तान तो 2027 तक चला गया. आई डाउट बड़ी हमें इतनी दूर का कुछ पता है, बट व्हाई नॉट? Yeah, we would certainly have a game between India and Pakistan in the T20 World Cup जो जून में आ रहा है अगले साल. Yeah, I don't know उसका वो क्या है. Schedule, I don't think the schedule has come out. उसका format क्या है? I'm not so sure. We don't. Yeah, that we have to find out. So अच्छा जी, my question is that sorry, this is which two teams are you expecting to see in the finals? राना राइट सी का है सवाल दूसरा. हाँ, सॉरी मैंने नहीं देखा था राना राइट का सवाल, अब मैंने पूछ लिया तो चल जरा जवाब दे. फाइनल में आपको क्या लगता है? Sure, it's okay. Yeah, go ahead. Which two teams do you see in the final? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लगता है. मिसबा? इंडिया साउथ अफ्रीका. ये टॉस हार गए थे फिर. It doesn't matter, all four good teams, so it's all about now कि उस दिन पे कौन टीम अच्छी खेलती है. सारे कैपेबल हैं दूसरे को हराने के, बट इंडिया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अगर बैलेंस देखें is a much better team than all other three teams. All right. अच्छा जनाब, मोहम्मद शोआ आपका एक्स हैंडल है MS बाजवा. MS बाजवा आज से Pavilion. अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल. Why Pakistani players do not play domestic circuit of Australia like county cricket of England? Don't they include overseas players, or Pakistani players are reluctant to play in the domestic circuit of Australia? No, it's very simple. The way जब उनका सीजन स्टार्ट होता है, हमारा सीजन स्टार्ट होता है, एंड वो पाकिस्तानी प्लेयर या पाकिस्तान से खेल लेंगे या फर्स्ट क्लास या काउंटी की बात कर रहे हैं. नहीं मैंने इस तरह काउंटी खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का क्यों नहीं? शेफील्ड होती है ना मेरा ख्याल है. सेम टाइम होते हैं. अक्टूबर एंड नवंबर टिल मार्च फेब
और दरमियान में आपका बिग बैश भी आता है। बिग बैश खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, या बिग बैश खेलते बिग हैं? बैश कुछ खेलते हैं हमारे प्लेयर्स। आपने खेला हुआ है? बिल्कुल खेला हुआ है। हाउ इज इट डिफरेंट टू अदर लीग्स? वेल आई वुड से अगर क्रिकेट को सिर्फ सामने रखा जाए तो बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। इज इट? यस, व्हाई? because their standard in cricket is it's very like वो बहुत superior है। Yeah, and I think उनका जो this year standard they है, are because it's just bit too long. उसको लंबा खींच लेते हैं, 2-1 महीने चलती है वो। So what happens is young players like if I'm 10-12-year-old, अगर 2 महीने का टूर्नामेंट I'll forget where my team is, who I'm supporting. So I think maybe इस साल शायद वो छोटा करें थोड़ा सा। उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है वसीम भाई, दैट लर्निंग प्रोसेस। या सो मतलब आपके प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो होते हैं, आपकी फिज़िकल फिटनेस जो है, बिकॉज उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत टफ नेशन है और उनके मतलब रूटीन लाइफ वाले भी जो लोग हैं वो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ऐसे लगता है कोई एथलीट्स हैं। सो यू लर्न अ लॉट और बहुत टफ नेशन है। I visit Australia, Melbourne quite a bit. So a couple of my neighbors, one is Ed, I think he's about 65-70 years old. They swim for 2 hours consecutive in winters in that freezing cold water. Because Melbourne में अगर गर्मी भी है 36 degrees है, the water is freezing. But imagine in winters. And they swim normally for 2.5 hours in the morning. That's normal for them. एंड वसीम भाई वो लुक आफ्टर बहुत अच्छा करते हैं। मैं बिग बैश खेल रहा था तो मैं अपार्टमेंट देते हैं ना वो आपको, बिकॉज यू स्टे देयर फॉर एज वसीम भाई सेड मंथ एंड अ हाफ। तो आप खुद ही कपड़े धोते हैं, खुद ही नाश्ता बनाते हैं, अपार्टमेंट होता है। तो लुक आफ्टर तो नहीं हुआ ना यार। नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, खुद ही काम करना हुआ। नहीं ये तो अच्छा है, इसी तो सीखता है इसी। हाँ इसीलिए तो अच्छा मैंने ना वो धो तो लिए, सुखाने वाली मशीन नहीं थी अपार्टमेंट में। मैंने ना वो बाल्टी पकड़ी, उसमें कपड़े डाले, सामने वो लगा हुआ था, आप वो कोइंस डालते हैं और आपके मशीन में कपड़े डालते हैं, वो सूख के बाहर आ जाते हैं। अच्छा जो हमारा CEO था होबार्ट का, उसने ना ही वाज पासिंग दैट रोड, तो उसने मुझे देखा, मैंने वो बाल्टी उठाई हुई है कपड़े उसमें और मैं लेके जा रहा हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं अपार्टमेंट वापस आया हूँ प्रैक्टिस से, मशीन अंदर लगी हुई थी सुखाने वाली भी। That is amazing. ये लुक आफ्टर किया उन्होंने कहा भाई ने सी। तो मशीन जो घर पे डिलीवर की उसमें भी कॉइन डालना था या वो बगैर कॉइन की थी? तुसी वीडियो गेम ये ली है, वो वाली मशीन नहीं है। ज़ुएब एहसन genius_ ज़ुएब, आपका सवाल है, if there is to be a biopic on Wasim Akram, whom does he think from Pakistani actors can play his role and Waqar Yunus in the movie? अगर आपने बायोपिक फिल्म बनाई। मेरे जो फेवरेट एक्टर थे, इज नो मोर इन द वर्ल्ड, आई विश वो होते तो मेरा रोल प्ले करते, रंगीला जी। Really? मुझे Allowed him. Well, actually, yeah, because the sense of humor, I think that's perfect. resemblance अगर किसी बात में मुझे लगता है इफ्तिखार ठाकुर साहब कर सकते हैं। Sure. Yeah. By the way, he's a super talented guy. Iftikhar Khan. He is. I like him. He's a मैं super वही बोल रहा हूँ, talented. बहुत talented है। मगर आपने शक्ल मिला दी, आपने कहा नहीं resemble करते थे। उसमें आपको एक्ट खुद ही करना चाहिए। But it's acting is not that easy, buddy, for 3-hour movie for biopic and all. आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस, जिस तरह का आपने रोला जट का रोल अदा किया है तो कमाल ही हो कोई गया। प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैं स्टेट में नहीं कर सकता। स्टेट में नहीं कर सकते। चले फिर मैं स्टेट में ब्रेक ले लेता हूँ, लेते हैं एक वक्फा, विल सी ऑन द अदर साइड। Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup and hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला जो है वो रमा दमा है। जी शोएब, you have a question. ये सवाल तो नहीं है, सजेशन है। जी। हाँ जी, पढ़ दूँ? पढ़े। अच्छा जी, इनका नाम है मलिक हफीज अवान। अच्छा जी, इनकी सजेशन है, हेलो डियर ऑल, यू पीपल लाफ सो मच ऑन एवरीथिंग, एवरी पॉइंट एंड एट एवरी क्वेश्चन, प्लीज डू मिनिमाइज if you can. Apart from it, you are doing an awesome job, probably the best cricket analysis going across globe for World Cup. क्या नाम है इनका? इनका नाम है मलिक हफीज अवान। Malik Saab, I thought मैं कोड़ा बाबा माँ, but I was so wrong. You are bigger कोड़ा बाबा than me. हंसो नहीं। Nobody laugh. Okay. All मलिक right. साहब नु हंसना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा जनाब, सकलैन SQQI आपका एक्स हैंडल है। आप कहते हैं, will Babar Azam remain captain after World Cup and who is perfect for Pakistan captaincy from present players? I think we can still wait. Look, I don't want to इस पे बोलना नहीं चाह रहे अभी हम। कल मैच है लड़कों का,
देखेंगे उसके बाद ये जिसका डिसीजन है वो करेगा कौन कप्तान कप्तान नहीं है. लेट्स डोंट गेट इनटू दिस. Too early to get into this, right? Let them do this. अच्छा जनाब, great panel. Dr. Fizzy, Simply FSL आपका X handle है. आप कह रहे हैं great panel, the ultimate cricket show. Thank you. My question is, rather than finding conspiracies, why we don't conclude that India's formula of not letting their players play foreign leagues except IPL have resulted in better fitness and bonding of players. That's very interesting. So आप कह रहे हैं कि जैसे इंडिया Simply FSL बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक पॉइंट ये रेज ये किया. कह रहे हैं वसीम भाई कि जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं दे उनको ओनली allow नहीं है. हाँ IPL वो काउंटी क्रिकेट अब जाने देते हैं, खेलने देते हैं उनको, या हाँ जी, या जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं दे कैन गो एंड वो प्ले भी रिटायर्ड जिसको 3-4 साल हो चुके हैं, मिनिमम 2 इयर्स जो है वो कर सकते हैं. तो अब वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी इस तरह रोका जाए, बाकी लीग्स ना खेलने दी जाएं और जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक है उसमें सारे खेलें. डोमेस्टिक में सबको खेलना चाहिए, लेकिन मलिक जिस तरह ये बात अभी उन्होंने की है, प्रीवियस 2 T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया की टीम का एग्जिट हुआ है ना, तो दैट वाज द मेन थिंग विच एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग. यार IPL में खेलते हैं सिर्फ, बाकी लीग्स में नहीं खेलते. इस वजह से इनको वो एक्सपीरियंस उस तरीके से नहीं है और वो शायद इंडिया की टीम को जो है अफेक्ट कर रहा है ये कि वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंडीशंस में नहीं खेलते. इस वजह से इनकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं है. तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस पे बहस बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलनी चाहिए. जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है तो उस वक्त आपके प्लेयर्स को वो खेलना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए. ओके, शेजी खान आपका एक्स हैंडल है खान_शेजी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. सो शेजी खान का असल नाम है शर्जील खान, और ये कह रहे हैं लास्ट वर्ल्ड कप में हम रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके थे. 4 साल बाद भी हम वहीं पे मौजूद हैं. कोई प्लानिंग, कोई वर्किंग नहीं होती रन रेट के हवाले से? तो हमारी चीज़ें तो सही है, ये तो नेट रन रेट वालों को पूछना चाहिए. नहीं, आई थिंक क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्वालिफाई किया था ना, वो नहीं सही है. 2019 में भी लास्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट जो था उसमें भी हम लोग सेम सिचुएशन में खड़े हुए थे. 4 साल के बाद भी. It's actually a very valid question. Very valid question. It really is a very good cricketing question कि 4 साल पहले भी ये थे, 4 साल बाद भी वहाँ हैं और अगले 4 साल बाद भी अच्छी होंगे. नहीं किए ना चीज़ें अपने होमवर्क, इसी वजह से हमने नहीं किए. अच्छी प्लानिंग नहीं थी, प्लेयर्स की फिटनेस अच्छी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड I suppose अल्टीमेटली after tomorrow's game, one show we should do, just not the negatives, राइट. give our suggestions how we can improve. Okay, there's no quick fix, we know that. Am I right, Misbah? जी. Right. Quick fix तो नहीं है, मे बी टाइम लगेगा, बट हम अपनी सजेशन दे सकते हैं 2-2, 3-3, एंड देन whoever is listening they probably can take it from open heart, from no angle, nothing. अगर कोई सुनना चाहे उसको और वाकई में कोई अगर सिंसियर है पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से, तो ये जो 4 हज़रात बैठे हुए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी और वैलिड बातें करते हैं. चूँकि वो एक तो होते हैं ना सेंसेशनल वाली, और वो रेटिंग के लिए और वो गुस्सा दिखाना और वो करना, उसके अलावा जनरली जेन्युइनली कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर बात कर रहा हो तो उसको मेरा ख्याल है सुनना ज़रूरी है. ये इस चीज़ का जवाब जो है वो ये ज़रूर बन सकता है कि रीबिल्डिंग प्रोसेस में जाते ज़रूर हैं. उन्होंने कहा कि 4 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी, 4 साल के बाद भी वही प्रॉब्लम है. रीबिल्डिंग प्रोसेस में जाते ज़रूर हैं, लेकिन जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन पे स्टिक नहीं रहा जाता, उन पे कंसिस्टेंटली जो है वो काम नहीं किया जाता. तो ये एक ऐसी चीज़ है. एंड एज वसीम भाई सेड कि इस पे प्रॉपर जो है एक अपनी सजेशन इंशाल्लाह मैच हो जाए. चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए. सबसे बड़ी वजह है 100% दीजिएगा, 100% होनी चाहिए. भाई एक और जो बड़ी वजह है कि जब हम कोई भी सीरीज़ जीतते हैं या अच्छी परफॉर्मेंसेस हमारी होती है, तो हम उस टाइम पे कोई भी बात सुनने को इम्प्रूवमेंट की तैयार नहीं होते. You mean players or you mean ओवरऑल मतलब है हमारे जो लोग भी हैं वो टीम अच्छा कर रही है, जीत रही है, व्हाई यू आर पॉइंटिंग आउट, बट यू नीड कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट. अगर जीते भी हैं तो उस टाइम भी जो आपको प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं कि यार यहाँ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, जो हमें अच्छी टीम्स के अगेंस्ट अच्छे टूर्नामेंट्स में जाके एक बेटर जो है ना पिक्चर दे सकती है, वो हम उस पर बात जो करता है उसके पीछे लग जाते हैं सारे लोग. ये बड़ा कीवर्ड आपने बोला है कि जब हम जीते भी
तो उस विक्ट्री के अंदर भी हमें परफॉर्मेंस के अंदर ये एनालाइज करना चाहिए कि वीक स्पॉट कौन सा है, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। शायद अगले मैच में कोई बेहतर टीम एक्सप्लॉइट कर ले, उसको अभी से इस जीत के अंदर ही जो है एड्रेस कर लिया जाए। जैसे आपकी फास्ट बॉलिंग जब अच्छा कर रही थी तो थोड़ा सा आपकी स्पिन बॉलिंग जो है Ignore हो वो गई। कहीं ना कहीं छुपी हुई थी कि ठीक है, बट एज ए टीम मैनेजमेंट या ओवरऑल जब प्लान आप करते हैं तो आप सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, वेयर वी नीड इम्प्रूवमेंट। उसमें चाहे जो भी हो, मैं हूँ कोई और है, यू नीड इम्प्रूवमेंट। आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है जी कोई मसला नहीं, क्योंकि प्रेशर सिचुएशंस में जब बड़ी टूर्नामेंट्स में आप आएंगे वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करेगी, एक्सपोज होंगे, फिर यही होगा नेट रन रेट And वो I जीत think जाए वो जीत all the cricket lovers in our part of the world, they do love their team, they do want to win. I understand where they're coming from, the frustration, sadness at times. But अब problem ये कि अब हम वर्ल्ड कप खत्म होगा, we'll forget about it. जून में वर्ल्ड कप शुरू होगा, फिर याद आएगा हम सबको, हो जी 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 है वर्ल्ड कप जीतना है। ऐसे ही So है। मेरी रिक्वेस्ट अब सबसे यही है कि आप लोग लगे रहें इस पे, पूछते रहें क्वेश्चंस, Yeah. ताकि एक सिस्टम बनाओ, डोंट फॉरगेट इट एज क्विकली। एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस चीज़ से रिलेटेड है कि इस वर्ल्ड कप में देखें कि इंडिया दे आर कवर्ड फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। Yeah. ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम सिर्फ वो 3 डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, वो उनमें इंजरीज भी आई उनके पास भी, लेकिन उन्होंने बंदे रेडी रखे हुए थे कि अगर ये इसको कुछ हो गया तो ये है, इसको कुछ हो गया तो ये है। तो आई गेस पूल ऑफ प्लेयर्स मूविंग फॉरवर्ड ये सबसे बड़ा जो है एलिमेंट है जो जिस पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की ज़रूरत है कि पूल ऑफ प्लेयर्स। Yeah. 3 फॉर्मेट्स हैं, आपको डिफरेंट बनाने हैं पूल ऑफ प्लेयर्स, आप वो करें, लेकिन पूल ऑफ प्लेयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उनको इक्वली चांसेस मिलने चाहिए ताकि हमेशा हर बंदा रेडी रहे। Fair enough. And with that, we're going to take a break here on the Pavilion. See you on the other side. Here we go. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app, and the video continues. I'm recording something, so I'm just going to say, Sam and Ian, thank you very much. Over to the great cricketers sending out this video. Right, hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला चल रहा था। बहुत सारे सवालात हमने कर लिए, बहुत सारी बातें हमने कर ली, बट मेरा ख्याल है ये नजर डालने कि कल क्या होना चाहिए। कल डबल हेडर है, कल बड़े लंबे मैचेस का दिन है, 2 मैचेस हैं एक साथ है। आइए दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कल आपकी खिदमत में क्या लेकर आ रहे हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश, और ये पुणे से आएगा, और ये सुबह 10 बजे बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर ये मैच दिखाया जाएगा। हम हाजिर होंगे सुबह 8:30 बजे आप लोगों की खिदमत में। सो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस Bangladesh, that's the first game. The second game is the second match. This is the big one. It's England versus Pakistan. Both teams that are probably not going to be playing the semi-final. Pakistan still mathematically possible, as many people would say. Wasim loves it, that we are still mathematically in the equation. But England is playing for pride. They have nothing to lose. But now, I guess neither does Pakistan. However, Wasim, I have an interesting thing. Babar Azam did a press conference today, Okay. and he said कि हम कल net run rate के लिए खेलेंगे. Okay. मैंने सुनी नहीं, so I don't want to comment on it. Right, but he made I that don't know statement. किस context में, किस उसमें कही है, किस I think we'll find out tomorrow कि net run rate उन्होंने पे बात की है कि ठीक है हमारे जहन में है, बट ऐसा नहीं कि हम जाके ऐसे ही बगैर कुछ प्लान किए खेलेंगे। मैच जैसे जैसे चलेगा उस तरह हम प्लान करेंगे, उसको कोशिश करेंगे। अगर हमारे हाथ में सिनेरियोज आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कहीं हम उस टोटल पे पहुंचे जहाँ को हमारा चांस बन सके। लेट्स सी हाउ इट गोज़। All right, with that, gentlemen, thank you very much. Thank you, Shoaib. Thank you, Moin. Thank you, Misbah. And thank you, Wasim. और आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे। देखते रहिए A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. And don't forget to tune in to the Pavilion.